we are starting today strain improvement of industrially important organism. And in last lecture, we have discussed about once again we have repeated that feedback inhibition and repression. Then we have learned about the pathway of arginine production and lysine production, and how we have produced the oxotrophic mutant, right? Double oxotrophy or triple oxotrophy we have produced for the overproduction of lysine, and we have given the title selection of induced mutant who are not producing feedback inhibitors or repressors. I hope you people are clear with that. So for next lecture, your homework is you have to follow, you have to find out the other pathway which are actually utilized for the production of oxotrophic mutant, or you have to identify the product, primary product. मतलब आपको वो ढूंढना है कि कौन सी प्रोडक्ट अभी कॉमर्शियल मार्केट में है जिसको इंड्यूस म्यूटेंट बना के फिर प्रोड्यूस किया जाता है, right? And if you are having Whittaker in soft form, then you will find it from Whittaker only. आपको वहीं से मिल जाएगा. अगर नहीं मिल रहा है तो then you find it out from Google too, and then share in Google Classroom. Okay, now so we have learned about two pathway, lysine and arginine. That you also you have to include. आपको हाथ से draw करना है और उसको एडोब स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बना के फिर क्लासरूम में अपलोड करना है. यू लिसन इट वंस अगेन. हाथ से पाथवे ड्रॉ करना है, कहाँ पे कैसे ब्लॉक किया, कौन सा एंजाइम ब्लॉक किया, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. कौन सी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होगी, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. हाथों से लिखना है, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, राइट? हाथ से लिख के उसको एडोब स्कैनर से स्कैन करो, कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ एंड देन सेंड इट टू मी इन क्लासरूम, राइट? आप जब सेंड कर रहे हो तो टाइटल देना अपना रोल नंबर उसको. आई विल फाइंड इट आउट, राइट? So I hope you clear with the oxotrophic mutant, and you people are also clear with modification of permeability. Okay, so what it is there anyone who understand it clearly? And now I hope you are clear with the glyoxylate pathway too. So anyone who is ready to explain me, unmute your mic. Anyone? Modification of permeability. क्या समझे थे? Are you able to listen me? Am I audible, guys? Yes, ma'am. हाँ, तो ठीक है, मैं दे रहा है. चलो फिर तो बताओ क्या था वो modification in permeability. क्या था? Which organism we have selected? I'm going to open the chat box now. Corynebacterium glutamicum. Corynebacterium glutamicum. Okay. For production of glutamic acid. Okay, for the production of glutamic acid. Okay. What you have provided in a medium? Biotin plus penicillium. Penicillin. Penicillium तो फंगस है, निकुल. Penicillin, ma'am. हाँ, penicillin. Biotin plus penicillin we have incorporated into the media. So अब आप दोनों को नहीं बोलना है यश and निकुल. Other will do. Yes, add biotin and penicillin. So now what will be the effect? Effect क्या होता है इन दोनों कंटेंट का? 5 माइक्रोग्राम. ठीक है. इफेक्ट क्या होता है? उज़्मा, दृष्टि, what will be the effect? Anyone else, guys? ये हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑर्गेनिज्म को क्या होता है इससे? Organism will not produce inhibitors and receptors. Okay, yes, very good, Krupa, thank you.
ब्लॉक होगा टीसीए साइकिल, नहीं रे, वो तो इम्प्रूवमेंट में होता है ब्लॉक। ग्लूटामिक एसिड, यस उज्मा, वेरी गुड कृपा, उज्मा आंसर इज राइट। गाइज यहाँ पे देखो उन लोगों ने क्या लिखा है, ग्लूटामिक एसिड रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, will help glutamic acid to release. Yes, Tejaswini. Yes, very good. See, TCA साइकिल तो ब्लॉक कब होगा निकुल, जब हम अल्फा कीटोब्यूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज पे ब्लॉक देंगे एंजाइम पे, that is known as induced mutant. We are talking about modification in permeability. So when you are incorporating this two substrate into the media, this particular organism is going to release glutamic acid into the atmosphere. वापस से हिंदी में बोलती हूँ, जितने लोगों ने लास्ट टाइम भी कान बंद रखे थे जरा ओपन कर लो। मॉडिफिकेशन ऑफ द परमिएबिलिटी ऐसा टाइटल दिया गया है जिसको हम स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट में कंसिडरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम लोगों ने मीडिया को मॉडिफाई किया, इस तरह से मॉडिफाई किया कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो खुद के पास ना रख सके, उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे। तो ग्लूटामिक एसिड जो है, जो जनरली इट इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो ऑर्गेनिज्म उसको खुद के लिए बनाता है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करता। तो हमने मीडियम में ऐसे कंपोनेंट डाले, एंड वो कंपोनेंट कौन कौन से थे? बायोटीन एंड पेनिसिलिन। अब ये दोनों कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर देंगे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हुआ, जो पहले सिलेक्टिवली परमिएबल था, अब उसका सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। ये सिलेक्शन चेंज हुआ तो वो जो ग्लूटामिक एसिड बनाता है, जिसको वो जनरली बाहर नहीं भेजता, उसको आपको भेजेगा। So this is called modification of permeability. So अगर आप सिर्फ मीडिया से ही कुछ चेंज कर सकते हो for the product formation, तो you are allowed, right? क्योंकि ये जो म्यूटेशन वाली जो चीज़ है, that is known as hit and miss method. तो हमेशा वो म्यूटेशन सक्सेसफुल नहीं रहता। So better है कि we always go with some other modification other than the mutation. So when you are working like this, then that is not known as strain improvement. लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज भी करना है, नॉट ओनली मॉडिफिकेशन, ये तो मैंने कर दिया कि ग्लूटामिक एसिड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, बट आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, then what I will do, I will stop the TCA cycle by producing a block on alpha ketoglutarate dehydrogenase. Now due to this block, TCA cycle break होगी और वो डाइवर्ट हो जाएगी ग्लूटामिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नाउ ड्यू टू दिस, अब TCA साइकिल भी तो जरूरी है, तो ऑर्गेनिज्म खुद के ग्रोथ के लिए TCA साइकिल बाईपास से रन करेगा, एंड दैट इज नोन एज ग्लायोक्साइलेट बाईपास। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस, ग्लायोक्साइलेट बाईपास, यस यस यस, ओके, बस इतने। हाँ ओके, दर्शन ओके, अभिषा ओके, भावार्थ ओके, ओके। मुझे यहाँ भावार्थ ऊपर ही दिख रहा है 516, मुझे ऐसा लगा वो मुझे नहीं सुन रहा होगा, लेकिन गुड, अगर समझ में आ गया तो ओके, गुड गुड। सो बाकी सारे ओके, डन डन, ठीक है, ओके। अभी कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो हम वापस से शेयर करें। इज देयर एनीवन? डन, ओके। Now here I want to stop here, and I just want to explain you about that registration for NET. That is CBC NET crash course, उसको crash course बोलते हैं, जिसमें आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, वो लोग आपको मटेरियल्स भी देंगे, वो लेक्चर्स भी आप स्टोर कर सकते हो। आप नेट की एग्ज़ाम जो है आप दे सकते हो ड्यूरिंग MSc पार्ट 1,
मतलब आपका सेमेस्टर 1 खत्म होगा और आप व्हेन यू विल बी इन सेमेस्टर 2 तब आप ये एग्जाम दे पाओगे। आर यू गेटिंग? सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है दैट इज फॉर द जीआरएफ शिप, मतलब जूनियर रिसर्च फेलो के लिए भी ज़रूरी है, लेक्चररशिप के लिए भी ज़रूरी है, और पीएचडी की एंट्रेंस जो है वो भी आप एग्जाम कर सकते हो इफ़ यू आर नेट क्लियर। तो ये जो कोर्स है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू कैन ज्वाइन इट, राइट। तो वहाँ पे जहाँ लिखा है कि एमएससी स्टूडेंट हो या पीएचडी स्टूडेंट हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो बीएससी परस्यूइंग, राइट। आप ऐसा लिखो बीएससी परस्यूइंग, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो वो चीज़ हम डाल देंगे, राइट। हमें सिर्फ आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका पूरा नाम और आपका ईमेल आईडी चाहिए, फिर हम एक्यूमुलेट करके आज उसको भेज देंगे 2 बजे, राइट। ये जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहा है गांधीनगर, और वो जीएसबीटीएम के साथ इनकॉर्पोरेट करके दे आर गोइंग टू फॉलो दिस क्रैश कोर्स। तो अच्छे लोग आएंगे लेक्चर के लिए ऑनलाइन। जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं प्लीज़ उनको सुनना। जिसका भी मास्टर्स करने का फाइनल है कि आई एम गोइंग टू डू मास्टर्स, प्लीज़ प्लीज़ डू द कोर्स, ये कोर्स ज़रूर करो, राइट। कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आएगी अभी, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होंगी, कुछ कुछ आपको ऐसा होगा कुछ रिपीट हो रहा है बार बार, उसको भी सुन लेना, राइट। क्योंकि वो जो मटेरियल आएगा ना दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ नेट सिलेबस, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस, तो कर लेना प्लीज़, ठीक है। जिनको आगे पढ़ना नहीं है आफ्टर बीएससी वो लोग रजिस्ट्रेशन मत करवाना। जितने लोग भी टारगेट कर रहे हैं मास्टर्स कोई भी टॉपिक पे, लाइफ साइंस पे, एनवायरमेंटल साइंस पे, बायोटेक पे करना है, माइक्रो में करना है, बीएमडीसी में करना है, सेल बायोलॉजी पे करना है, कुछ भी करना है मास्टर्स में, तो वो लोग ये क्रैश कोर्स कर लेना फॉर द नेट। तो आप लोगों को इतना तो समझ में एटलीस्ट आ ही जाए कि दैट इज what will be the syllabus in net exams, okay? Okay, so let's start with the next topic, और 5 मैम मिनट के लिए, हाँ बोलो। मैम वो फूड टेक्नोलॉजी में यूज होगा? हाँ क्यों नहीं भाई, it's a national eligibility test, so whatever subject is there with you, right, so आप नेट की एग्जाम दे सकते हो। उसमें फिर नेट की एग्जाम में आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना माइक्रोबायोलॉजी, though you are doing your masters in food technology doesn't matter, right। आप उसमें कोई भी, इट्स लाइक यू नो जीपीएससी, हम साइंस करते हैं लेकिन हम हिस्ट्री में भी एग्जाम दे सकते हैं, सो वी आर अलाउड। डन गाइस? ओके, सो बैटरी के लिए मैं 1 सेकेंड के लिए लेफ्ट करूंगी मीटिंग एंड देन आई विल ज्वाइन अगेन, स्टे हियर।
गार्गी लेट क्यों आए इतना? वेर इज श्री पटेल गार्गी? सॉरी मैम। सॉरी फॉर व्हाट? आगे के लेक्चर में जल्दी आने के लिए? नहीं मैम, सॉरी। अच्छा guys, we are starting with the next topic, that is selection of induced mutant who do not recognize the presence of inhibitors and repressors. पहला टॉपिक क्या था? सिलेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेंट who do not produce inhibitors and repressors. Now we are moving on. Selection of induced mutants who do not recognize the presence of inhibitors and repressors. मतलब अब क्या होगा? पहले आप ऐसा करते थे कि वो जो इनहिबिटर्स हैं उसको बनने ही नहीं देते थे, ऐसा ब्लॉक बना देते। अब ऐसा करना है, ऐसे इंड्यूस म्यूटेंट बनाने हैं कि जो प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन वो जो इनहिबिटर है, मतलब इनहिबिटर और रिप्रेशर वाली जो प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई ना करे। इट्स लाइक मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हो और मेरा कंट्रोल आपके ऊपर रहता है, राइट? अगर मेरे जैसा कोई, मतलब इट्स लाइक, नहीं इसका भी अच्छा कोई एग्जांपल देती हूँ मैं। हैव यू सीन दैट फॉल्स मैन इन फार्म? एवरीवन? चाडियो, Yes. हाँ चाडियोजेनिक है भाई। So I hope you know about that. See, that false man is going to control. How it is going to control? वो जो, हाँ, yes. वो स्केयर करता है क्रोज को, स्पैरोज को, राइट? वो बर्ड्स को स्केयर करता है। अगर ऐसा सोचो कि बर्ड्स ने उसको नलीफाई कर दिया तो फिर, मतलब अगर बर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स से डरना बंद हो जाए, मतलब वो ह्यूमंस को भी, ह्यूमन से जो डरते हैं बर्ड्स, अगर ऐसा ना हो तो फिर वो फॉल्स मैन से डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हियर द टाइटल इज लाइक दैट, इनहिबिटर्स एंड रिप्रेसर्स को म्यूटेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? Anyone who is ready to explain me? Hello, anyone is there who is ready to explain me? Analog, अरे वाह क्या बात है, देख लिए सारे वीडियो हैं? हाँ, क्या बात। ओके, so yes, analog resistant mutant, agree with you guys. So देखिए, ये जो टाइटल मैंने दिया, induced mutant who do not recognize presence of inhibitors and repressors. Now ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसका स्ट्रक्चरली सिमिलर कोई प्रोडक्ट होगा, राइट? आराम से सुनना। हाँ, इफ कोई भी प्रोडक्ट है, छोटी सी या कोई भी, मतलब उसका स्ट्रक्चरली सिमिलर हमने कोई प्रोडक्ट बनाई, तो वो जो प्रोडक्ट यू हैव सिंथेसाइज्ड बाय योर ओन सेल्फ, दैट विल बी कॉल्ड एज एनालॉग। वापस से बोलती हूँ, सुनो। जो नेचुरल प्रोडक्ट है, सेम स्ट्रक्चरली सिमिलर, कोई सिंथेसाइज की हमने प्रोडक्ट, कोई बनाई चीज, उसको हम बोलेंगे एनालॉग। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत एक वीडियो चला था जिसमें ऐसा बोला जाता था कि कैबेज जो है वो चाइनीज पीपल प्लास्टिक से बनाते हैं। यस एवरीवन, देखा है किसी ने? वो प्लास्टिक से कैबेज बनाते हैं। हाँ, फिर वो राइस, प्लास्टिक राइस, हाँ वैसे वाले वीडियो चले थे बहुत। सो दैट इज नेचुरल जो प्रोडक्ट होती है उसकी स्ट्रक्चर कॉपी करके उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाई जो टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक होती है ना, वो टॉक्सिक ही है ना, वो प्लास्टिक कैबेज और प्लास्टिक राइस, दैट इज टॉक्सिक। सो दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग
जो नेचुरल प्रोडक्ट के सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और वो टॉक्सिक है, राइट? अगर आपने वो टॉक्सिक प्रोडक्ट से रेजिस्टेंसी पाली, if you got resistant towards that toxic product, तो फिर नेचुरल प्रोडक्ट तो आपको हार्म नहीं करेगी. अग्री और नॉट? डू यू पीपल अग्री विथ माई पॉइंट? कितने लोगों को समझ में नहीं आई ये बात? अगर मेरा बॉडी प्लास्टिक खाने से रेजिस्टेंट हो गया, राइट, तो फिर वो नेचुरल प्रोडक्ट में कोई भी फंगस आएगी, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, तो क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा. आर यू गेटिंग? डन. सो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनालॉग रेजिस्टेंट म्यूटेंट. एनालॉग की डेफिनेशन जो है, दैट इज this particular product, it is going to mimic the properties of original product. Repeating myself, analog means this product is mimicking the properties of the original product. Analog is toxic to the original organism, right? So we are going to produce एनालॉग रेजिस्टेंट म्यूटेंट. अगर ये टॉक्सिक प्रोडक्ट से ये रेजिस्ट हो गया, तो दैट विल बी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द नेचुरल प्रोडक्ट. डन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ. और बैटरी बहुत ही लो है मेरे लैपटॉप की, और वो आज चार्जिंग नहीं ले रहा है. मतलब इसको कुछ म्यूटेशन हो गया इसका. आई डोंट नो what happened to my laptop. बट लेट्स ट्राई कि हम एक स्लाइड भी अगर कर पाए तो. डू यू पीपल नो अबाउट ग्रेडियंट प्लेट टेक्निक? ग्रेडियंट प्लेट. अनम्यूट करके जवाब देना, मुझे नहीं दिख रही है आप लोगों की स्क्रीन. यस मैम. हाँ, No. क्या है? Yes, ma'am. अच्छा, no भी आ गया. अच्छा, ठीक है, ठीक है. मतलब ये लोगों ने अभी वीडियो देखना बाकी है, ऐसा मैं सोच लेती हूँ. कोई बात नहीं गाइज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. Are you able to see my screen? No, ma'am. अभी दिख रहा है? No, ma'am. रुको रुको रुको. Yes, अभी ma'am. दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. देखिए टाइटल देखिए, सिलेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेंट who does not recognize the presence of repressors or inhibitors. Done. Now here I have given two subtitles: isolation of analog resistant mutant and isolation of revertant mutants. Okay. Now see, ये जो है दैट इज, ये मैंने पेट्री प्लेट ली है. दिस इज द पेट्री प्लेट. आप इमेजिन करो कि दैट इज अ पेट्री प्लेट. ये ऊपर की लीड है, दिस इज द बेस. ओके. नाउ ये जो बॉटम का लेयर है जो आपको डार्क दिख रहा है, दैट इज अगार प्लस एंटीबायोटिक. अब ये जो एंटीबायोटिक है वो कौन सा है? दैट इज एनालॉग. आर यू गेटिंग? तो ये जो है मैंने स्लांटिंग पोजीशन में डाल के रखा है. Are you able to listen me, guys? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए ये इसको मैंने स्लांटिंग पोजीशन में रखा है. अब सोचो कि यहाँ पे एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? सबसे ज्यादा. यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे सबसे कम. So now I am going to pour a plain agar over here with a test organism. Guys,
समझो बराबर, यहाँ पे एंटीबायोटिक डाला है, यहाँ पे मुझे ऑर्गेनिज्म डालना है प्लेन अगार के साथ, यहाँ पे मैंने कोई अदर केमिकल इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, राइट। अब सी, एज यू नो दैट एनालॉग इज टॉक्सिक, तो यहाँ पे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे भी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन वॉज वेरी लेस, लेकिन यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपको जो ग्रोथ मिलेगी दैट इज नोन एज म्यूटेंट। ये जो है यहाँ पे आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो यहाँ पे तो ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगा बिकॉज इट टॉक्सिसिटी तो है ही बिकॉज इट इज एनालॉग, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ हमें मिलेगी यहाँ। सो इफ यू आर गेटिंग ग्रोथ ओवर हियर then that is known as mutant। अब जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो किया, जिसने भी यहाँ पे जो सेल यहाँ पे ग्रो कर गए हैं, वो ऑर्गेनिज्म अब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक को बेयर कर सकते हैं, नेचुरल वाली। सी इफ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन, मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस कर रही हूँ, यहाँ पे एनालॉग मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन का डाला है, तो जनरली क्या होता है, जैसे भी सेप्टोमाइसिन कुछ कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करता है उसका फीडबैक इनहिबिशन आता है ना। वो जैसे ही 2 माइक्रोग्राम अगर उसको चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर उसने 3 माइक्रोग्राम कर दिया तो वो क्या होगा, 3 माइक्रोग्राम में से 1 माइक्रोग्राम जाके वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा और दैट विल गिव फीडबैक इनहिबिशन, तो वो पाथवे हो जाएगा बंद। व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, हमें वो पाथवे बंद नहीं करना है, वी वांट टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो अब अगर मैंने ये जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का एनालॉग यहाँ डाला था, वो इस कॉन्सेंट्रेशन तक अगर बेयर कर गया ऑर्गेनिज्म, ये तो टॉक्सिक था, तो जो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन है उसको वो बेयर करेगा कि नहीं करेगा? यस यस कैसे? नहीं करेगा बच्चों। मैंने क्या बोला था, मैं प्लास्टिक खा रही हूँ, अगर वो कैबेज प्लास्टिक की है, उससे अगर मैं नहीं मरी खाने से, तो नेचुरल कैबेज खाने से थोड़ी मर जाऊंगी। आर यू गेटिंग? तो ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन उसने जो बेयर कर लिया, अब क्या होगा कि वो 3 माइक्रोग्राम 4 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम तक खुद की नेचुरल प्रोडक्ट को पाथवे इनहिबिट नहीं करने देगा। आर यू गेटिंग गाइस? यस मैम। मैम एक बार रिपीट करो ना मैम, एक बार रिपीट करो ना। हाँ करो, सुनो वापस से सुनो। सी, यहाँ पे आपने नेचुरल प्रोडक्ट की जगह जो प्रॉपर्टीज मिमिक करती है ऐसी प्रोडक्ट यूज की है, दैट इज नोन एज एनालॉग। नाउ दिस एनालॉग इज गोइंग टू गिव अ टॉक्सिसिटी, मतलब वो टॉक्सिक है, तो वो ग्रोथ के लिए तो इनहिबिटरी है, राइट। तो मैंने उसको ग्रेडियंट फॉर्म में डाला, तो कोई एक प्रोजेनी जो सेल की होगी ना, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बेयर करके एक ऐसे कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रो कर जाएगी जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रो हो गई तो वो नेचुरल प्रोडक्ट जो है उसकी खुद की, उसका फीडबैक इनहिबिशन नहीं लेगी। क्यों? अब ये मैं वापस से समझाती हूँ। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर्टीज मिमिक करती है नेचुरल प्रोडक्ट की। नेचुरल प्रोडक्ट का काम क्या था कि वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता था और वो एंजाइम जो है वो फीडबैक इनहिबिशन दे के पाथवे को कंट्रोल कर रहता था। अब ये जो प्रोडक्ट है वो मिमिक करती है प्रॉपर्टी, लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर है, लेकिन फंक्शनली शायद नहीं होगी। तो वो जाके अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो गई तभी वो यहाँ पे ग्रो कर पाया ना। आर यू गेटिंग? वो यहाँ पे ग्रो करता है इस जगह पे, मॉडरेट फेज पे। वो कैसे करता है? क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट को एंजाइम के साथ बाइंड किया और वो एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, इसलिए वो इनहिबिशन नहीं आया और ग्रो हो गए ऑर्गेनिज्म। नाउ अब वो ऑर्गेनिज्म खुद की प्रोडक्ट जब बनाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो खुद बनाएगा, तो वो जो उसका ओरिजिनल नेचुरल एंजाइम है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। It's like if my stomach got resistant toward plastic,
तो मुझे कोई कुछ भी दे दे in the form of plastic, now my stomach is resistant towards the plastic. So same way ये structurally similar product जो थी उसने ये ऑर्गेनिज्म का म्यूटेशन कर दिया. कहाँ पे म्यूटेशन किया है? तो वो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो था वो उसने मॉडिफाई कर दिया. तो अब आपकी नेचुरल प्रोडक्ट वहां पे जाके बाइंड होगी, लेकिन एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि उसने गलत प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया था. इट्स लाइक आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि बच्चे कॉलेज क्लास में जाते हैं और कोई सीनियर आके आ जाता है क्लास में तो सारे बच्चे खड़े होके बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर. क्यों ऐसा गुड मॉर्निंग बोलते हैं? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मैन या फीमेल है, मेल या फीमेल, वो अपने टीचर्स को मिमिक कर रहे हैं. अब इसके बाद क्या होगा? जब ओरिजिनल टीचर आएगा ना, तब भी बच्चों को ऐसा लगेगा कि वापस से कोई सीनियर आ गया तो उसको ग्रीट नहीं करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड एनालॉग. हाँ, अभी समझ में आ गया. दैट इज कॉल्ड एनालॉग रेजिस्टेंट म्यूटेंट एंड दिस इज नोन एज ग्रेडियंट प्लेट टेक्निक which is used for the production of analog resistant mutant. अगर वो एनालॉग से रेजिस्ट है तो फिर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से भी रेजिस्ट है. The next point is isolation of revertant mutant. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देती हूँ. कैंसर पेशेंट जो है, राइट, यू ऑल नो वेरी वेल दैट इज अ कैंसर पेशेंट. इसके बाद का जो है पॉइंट वो और कुछ नहीं है. थैंक यू गाइज. ये रिवर्टेंट म्यूटेंट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बैटरी इज रनिंग टू मच लो गाइज, तो मैं जो बोल रही हूँ उसको फटाफट से सुन लो. सो नाउ रिवर्टेंट म्यूटेंट कैंसर पेशेंट जो है, उन लोगों को क्या होता है? दैट व्हाट कैंसर इज, दैट इज अ म्यूटेशन. अग्री और नॉट? हाँ, कैंसर इज म्यूटेशन. ओके, नाउ उन लोगों को ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? कीमोथेरेपी. यस, केमोथेरेपी, रेडिएशन. दैट इज आल्सो म्यूटेशन. यस Yes, ma'am. यस, दैट इज आल्सो म्यूटेशन. ये केमिकल म्यूटाजन ही तो यूज करते हैं ना फॉर द ट्रीटमेंट. तो क्या हुआ? वो जो म्यूटेटेड जो सेल थे उसको उन्होंने वापस से वही पोजीशन पे लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होता है? नो मैम, वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. मैं आपको वापस से उसको समझाती हूँ. यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. रिवर्टेंट म्यूटेंट मीन्स व्हाट? सी, वी हैव डन ऑक्सोट्रॉफी, वी हैव प्रोड्यूस ऑक्सोट्रॉफी फॉर होमोसिरिन, थ्रियोनिन एंड मीथियोनिन. यस, हम लोगों ने वो ऑक्सोट्रॉफी जनरेट की थी लाइसिन ओवर प्रोडक्शन के लिए. यस मैम. हाँ, कहाँ पे ऑक्सोट्रॉफी जनरेट की थी? ब्लॉक हमने कहाँ किया था? होमोसिरिन डिहाइड्रोजनेज में. ओके, तो उसी लोकाई पे अगर मैं वापस से म्यूटेशन करती हूँ तो क्या होगा? वो होमोसिरिन डिहाइड्रोजनेज जो बनना बंद हो गया था उसी पे मैंने अगर वापस से म्यूटेशन किया तो अब होमोसिरिन डिहाइड्रोजनेज बनेगा ना? Yes, ma'am. बनना चाहिए, राइट? बनना चाहिए. अगर हमारा सेकंड म्यूटेशन सक्सेसफुल रहा तो होमोसिरिन डिहाइड्रोजनेज वापस से बनेगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा ना. सी, इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग माउथ कैंसर्स, राइट? उनको रेडिएशन दिया जाता है तो उनके जो वो चीक सेल थे वो वापस से उसी पोजीशन में आते हैं? नहीं आते. आर यू गेटिंग? यस मैम. हाँ, जो जिसको भी माउथ कैंसर था, जिसको ट्रीटमेंट दी गई, केमोथेरेपी, रेडिएशन, उसके जो सेल थे उसी लोकाई पे जहाँ पे म्यूटेशन हुआ था उसी लोकाई पे वापस से म्यूटेशन किया गया, लेकिन वो जो सेल है वो वापस से नेचुरल फॉर्म में नहीं आते हैं. उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह जाती है. तो सेम वे ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट वी हैव प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन होमोसिरिन डिहाइड्रोजनेज. So we are going to produce mutation once again on the same loci of homoserine dehydrogenase. So now the homoserine dehydrogenase will start synthesizing homoserine and threonine.
But now the homoserine who was able to recognize methionine in threonine, but now that is with the deficiency. तो अब क्या होगा, ये जो रिवर्टेंट म्यूटेंट है वो होमोसिरिन थ्रियोनिन बनाएगा, लेकिन वो पहले जैसी प्रोडक्ट नहीं होगी। तो ये जो पाथवे है, इसके लिए आपको अब मिनिमल मीडियम में ग्रोथ फैक्टर्स नहीं डालने पड़ेंगे क्योंकि वो खुद बनाता है, लेकिन वो पहले जैसी प्रोडक्ट भी नहीं बनाता है, तो वो फीडबैक इनहिबिशन भी नहीं देगा, क्योंकि अब जो थ्रियोनिन बनता है वो थ्रियोनिन एस्पार्टोकाइनेज आइडेंटिफाई नहीं करेगा बिकॉज इट इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, इनहिबिशन वॉन्ट बी देयर। यस यश। अब इस वाली टॉपिक को आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप मेरा एक बार और वीडियो देख लेना जो मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में शेयर करके रखा है, राइट? And in next lecture, I will start with strain improvement part 2, right? Where we will discuss about strain improvement other than the yield. अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट को दिमाग में रख के चला. Now we will focus on other factors too, other than the product, right? So I hope you clear with this, guys. Is there any question? अगर कुछ समझ में ना आया हो और कुछ Is there any questions? It's open quorum now, guys. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. तो कोई क्वेश्चन है? सारे जो 125 प्रेजेंट है अभी, वो सबको सब समझ में आ गया? 127 सॉरी मैम अभी लास्ट वाला रिपीट करूं मैम? अभी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ठीक से सुनाई नहीं दिया मैम। अच्छा, धवल ना? ओके यस धवल, ये जो रिवर्टेंट म्यूटेंट जो है दैट इज, अब मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में समझाती हूँ कि व्हेन वी आर गोइंग विथ म्यूटेशन ऑन अ सिंगल लोकाई, मतलब एक ही जगह पे हमने म्यूटेशन दिया. Now we are going forward. Once again we are going to produce a mutation on the same locus. हम दूसरी बार उसी जगह पे म्यूटेशन करेंगे, तो वो नेचुरल फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेगी. वो जगह जहाँ पे हमने म्यूटेशन किया था वो नेचुरल फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेगी. लेकिन ये कौन है? 701 701 is who is? So ये जो वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा. तो अब वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है दैट विल बी डेफिशिएंट प्रोडक्ट. वो डेफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस होगी. डबल, इसका एग्जाम्पल मैंने म्यूटेशन दिया था. म्यूटेशन मतलब वो कैंसर पेशेंट का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जिन लोगों को म्यूटेशन होता है उनको कैंसर होता है. उनको जब रेडिएशन दिया जाता है तो वो जो रेडिएशन है वो सेल को वापस नेचुरल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है. वो नेचुरल फॉर्म में वापस आते हैं लेकिन विथ डेफिशिएंसी, वो ओरिजिनल जैसे नहीं होते. सो अब वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट डेफिशिएंट होगी. सो बाय दैट वे दिस पर्टिकुलर हमने होमोसेरिन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का एग्जांपल जो लिया, वो जो एंजाइम है वो अब होमोसेरिन एंड थ्रियोनिन बनाएगा लेकिन वो डेफिशिएंट होगी. तो वो जो थ्रियोनिन है जो लाइसिन के साथ मिलके फीडबैक इनहिबिशन देता था वो अब नहीं दे पाएगा बिकॉज थ्रियोनिन खुद डेफिशिएंट है. देन अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार विटेकर पढ़ लेना. मैं आज मनोज सर को बोलती हूँ कि ही इज गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस बिकॉज अब बहुत हाई टाइम है, आपको ज़रूरत है इसको पढ़ने की. ओके गाइस, सो स्टे सेफ एवरीवन. हाँ, और कुछ धवल बोलिए. ओके डन, ठीक है. ओके गाइस, सो स्टे सेफ एवरीवन. ओके बाय.